तेरा कभी नहीं कहाँ से दूँ? ठंडे तुझे बोला है ना काम नहीं कुछ नहीं दादी ये कैसे प्रेजेंटर्स कैसे बन जाते हैं? ओके। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बोला था कि जिसको जिस टॉपिक में कोई इशू हो, कोई समझ में नहीं आया, सो दैट वी कैन रिपीट दैट। मैम सेशनल्स में कहाँ तक का आएगा डीएस में? सेशन में फर्स्ट कंप्लीट यूनिट which includes introduction to the data structure, array and linked list. एल्गो वगैरह ही लिखने को आएंगे? Yes, repeat your question बेटा। मैम एल्गो वगैरह ही लिखने को आएंगे या कोड्स भी आएंगे? नहीं, कोड्स नहीं आएंगे, एल्गो ही लिखना है। एल्गो प्लस लॉजिक प्लस their definition, their concept, all these. ओके मैम। Okay, so I have decided today कि because many of the students were not there during the last classes, so we can revise at least linked list because you array you already studied in the last year also. You are having better idea of that, but linked list many of you are not much aware about it. So we should start new topic or we should revise? It's all upon you. मैम Yes. रिवीजन हैं। Revision करना है, okay. How many of you want revision? Only one student? मैम एक बार करा मैम टू वे लिंक लिस्ट भी आएगी सेशनल्स में? Yes, yes. Linked list में आपका last topic is two-way linked list itself. मैम फिर लिंक लिस्ट एक बार बता दो। Linked list बता दें, okay. और भी किसी को है जिसमें linked list में doubt है? Okay, so today we'll revise linked list first, then we'll do the next.
याद रहेगा ये डांस वाले Yes, I hope you all are able to see the screen. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are revising the complete linked list from the beginning, starting from its definition, its type, and the operations that we can perform on linked list. So you just go through all the points and let me know if you have doubt in any one of these. Yes, all of you go through these points. मैम एक बार थर्ड पॉइंट समझा दो. Okay. First is clear to everyone कि ये collection of objects है और एक list form में store करता है. Second is a linked list is a sequence of item where every item is linked to the next one. A linked list is a non-primitive type of data structure in which each element is dynamically allocated and in which elements points to each other to define a linear relationship. Okay, so when we talked about the classification of linked list, initially we can classify the data structures into two categories. One is primitive, another one is non-primitive data structure. So under the primitive one, we have like integer, character, float, etc. And under non-primitive, we have array, linked list, etc. So under the non-primitive, again, further we can classify as linear and non-linear. So basically the data structure which are not created by the system, which are generated or created by the user are called non-primitive data types. जैसे आपका int, float, character वगैरह ये सब होते हैं, these are already system defined. Now by using these primitive ones, we can create our own also. So those are known as non-primitive, which are created by the user, right? Okay. So that's why the linked list is the example of non-primitive data structure. Second thing, इसमें जो आपका memory है, that is dynamically allocated because like in the case of static array, we initially, before initializing the array, we allocate the memory to it. Like हमने लिखा A50. A50 means we are reserving the space in the memory for the 50 elements of array. For the 50 elements of the array. But in the case of linked list, we are not advanced. In advance, we are reserving any space. We dynamically allocate the space whenever a new node is created because we initially don't know how many nodes are going to be there in your linked list. So depending on the requirement, the memory is dynamically allocated to every node. Yes. Is it clear now? What is non-primitive type of data structure and dynamic allocation? And because हम linear linked list है हमारी, तो उसको हम एक sequential way में access करते हैं. Like if you want to reach to the node 10, तो node 10 पे जाने के लिए आपको first you need to process all the 9 nodes before reaching to the 10.
So we don't have the random access to the memory allocation or random access to the nodes of the linked list. So we have to follow a complete sequential path in order to reach some node. That's why it's given as linear relationship. Is it clear to everyone now? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, then move forward and tell me the next which you have doubt. मैम क्लियर है आगे के सारे पॉइंट्स. Okay. So all of you have gone through the points. Can we move forward? सबको समझ में आ गया इतने? Yes, ma'am. Okay. Now this is how. Yes. आपने 3 PDF शेयर करी थी एक पीछे भी ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे. हाँ जी बेटा. मैम मुझे कौन सी वाली बुक में से करना है? ओके बेटा वो सारी बुक मतलब डिफरेंट डिफरेंट उसके ऑथर्स की हैं एंड दे आर फॉर डिफरेंट सिलेबस बट उसमें आपको लाइक जैसे एक तो यू कैन फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्सिटी नोटेशंस तो वो आपको तीनों में मिल जाएंगे. वो तीन मैंने आपको इसलिए शेयर की थी जैसे किसी को किसी पर्टिकुलर एक में उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं है या द मेथड ऑफ एक्सप्लेनेशन इज नॉट क्लियर इन दैट केस यू कैन रेफर टू द अदर वन. तो आपको जो भी उसमें सुटेबल लगे एक या दो टॉपिक ही आपको पढ़ने हैं अभी इनिशियली जितना हमने पढ़ा है उसमें से. Mostly आपका complexity is given good in all these three. So what is complexity? Time and space trade-off, and the complexity notation big O, omega and theta. इनके लिए वो उन तीनों में से you can prefer any one जिसमें भी आपको easily समझ में आ रहा है. ओके मैम. So next we have how the node of a linked list will look like. As I told you that every node of the linked list or the single linked list is divided into two parts. One will have the data and another one is known as link part, which will always point to the next node. And because we'll implement all these programs in C language itself, so C structure is used to represent this kind of struct node. So we'll declare the data type or we'll create the structure as struct node, and this will have the two parts of node, int info and struct node star link. So एक आपका info part हो गया kind of integer, and struct part we are having the pointer. So next we have the operations on linked list. Operations on linked list means we have all these operations: traversing, insertion, deletion, copy the linked list, or searching an element. Any operation you can perform. Now इसमें insertion and deletion matter करता है कि आप किस location या position पे कर रहे हैं. Like you are inserting at the first position, last, or somewhere in between the ordered list. आपकी unordered list है. So depending on all these positions and the type of list, like it is sorted and unsorted, we have the different kind of algorithms. Similarly for the deletion also, the location matters. Deletion में आपको उसका location given है या फिर उसके data की value given है. इस पे depend करता है कि आप कौन सी algo use करेंगे. Next we have types of linked list. You can see here. The first type of, basically we are having the three types of linked list. कौन सी होती हैं? Yes, what are the different types of linked list?
मैम तो सिंगली two-way लिंक लिस्ट, और एक सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट और एक सर्कुलर. एंड टू वे। ओके, सो एक होता है आपका सिंगल लिंक लिस्ट या सिंपल, जिसको हम केवल लिंक लिस्ट बोलते हैं. नेक्स्ट वी हैव सर्कुलर लिंक लिस्ट, जिसमें कि लास्ट नोड इज पॉइंटिंग बैक टू द फर्स्ट नोड. And then we have two-way list. Now starting with the singly linked list, it is a basic type of linked list. Each node contains data and pointer to the next node, and the last node's pointer is null because it will tell you that this is the end of the linked list. And the limitation is kya ho gaya, because we are having only one pointer, so we can traverse only in one direction, that is forward direction. So these are the main features of singly linked list. This is how a single linked list will look like. Okay, now all of you go through the points of circular linked list and tell me if you have any doubt in any point. Okay, have you read all the points? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear hai sabko? Yes, ma'am. This is how a circular linked list will look like. The last node will be pointing back to the first one instead of having the null pointer as we had in singly linked list. Two-way list is also known as doubly linked list. Now in different books and different study material, the different notations are used for the doubly linked list. Like what we discussed in the class, we used backward and forward pointer. Here it is like taken as left and right pointers. जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, in that we kept info in the first part of the linked list. Second was used for the backward pointing and last one was used for the forward pointing. While in this particular document, we are using the middle one as the info part
There is one left pointer and then we have right pointer. Left is pointing back to the previous node and right is pointing to the next node. So now you just go through features of two-way linked list or the doubly linked list. Yes, all the points are clear. Yes, ma'am. So the main advantage of this doubly linked list क्या है कि we can traverse in both the direction forward and reverse, while we had this limitation in single linked list. But what is the disadvantage? Because in this more pointers are involved, so insertion and deletion of point, any node will make use of multiple pointers. And definitely it is going to use more memory because it is using the previous pointer also. This is how the linked list will look like. In doubly linked list, middle one is used for the data, left is pointing the previous node, and right is used for the pointing the next node. Next is advantages and disadvantage of linked list over array. Array you already started in the first year. थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं पेपर में. जी बेटा. ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में. Yes, yes, definitely. So I hope all these points are clear to everyone. Yes, ma'am. मैम Then we have the advantages and disadvantages of the linked list.
हाँ जी बेटा, पढ़ ली सबने? Yes, ma'am. क्लियर है सबको? आई डोंट थिंक सो कि इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक या पॉइंट है जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया हो पहले, इसलिए सबको समझ में आ रहा होगा। Yes, ma'am. Okay, this question is not useful right now because we have not done the stack and queue. Next, we have the algorithms for single linked list. Insertion at first position, last position, insert in ordered linked list, and delete element. ये स्टूडेंट सेल को समझ में आ रही है ये? Yes, ma'am. आप लोगों की जिनकी क्लासेस मिस हुई थी वो कौन सा टॉपिक से स्टार्ट, मतलब कहाँ से मिस हुई थी, तब क्या चल रहा था टॉपिक? हाँ, आपने सर्चिंग वर्किंग कराई थी लिंक लिस्ट के अंदर, एल्गोस बता रहे थे उसके सारे। इट मीन्स ये आपको इनिशियली जो हमने सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन डिलीशन किया था ये तो आता होगा। Should I move to the next?
This is the algo for insertion at the first location. Okay, can you tell me what will be the difference in the algo when you are inserting element at the first location or inserting at the last location? What will be the difference? Hanji beta, I asked you some question. Is anyone able to answer this question? मैम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, दोनों में सिर्फ एक एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। ओके, तो हमने दो अलग नोट क्यों लिखे हैं, मतलब आई मीन दो अलग एल्गो क्यों बनाई हैं इसके लिए? अब ऑब्वियसली ये डिफरेंस है कि फर्स्ट वाली नोड में उसके एड्रेस में चेंज है और लास्ट नोड में इंसर्ट करते हुए जो लास्ट नोड है उसके एड्रेस में चेंज है, बस इतना चेंज है, ऑपरेशन एक ही है। ओके, okay, can all of you write the algo for copying the elements of one linked list to another linked list? Yes, can you write the algo? यस मैम। Okay, all of you write and let me tell, tell me, and then I'll ask you to share your screen. All of you do it. एल्गो लिखिए जिसमें कि आप एक लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को एक से दूसरे में कॉपी कर रहे हैं।
Clear to all of you? हमें ट्राई करिए चैट बॉक्स में भेजूं वो कब आएगा? कब आएगा वो? आवाज आ रही है कि लंबा कुछ नहीं?
Yes, am I audible to everyone? हाँ जी बेटा, आ रही है आवाज? I think screen sharing has been stopped. हाँ जी, लिख लिया सबने एल्गो फॉर कॉपिंग द एलिमेंट्स? यस मैम। किसने लिखा है बताइए? मैम कोड पे भेजो, मैंने टेक्स्ट में लिखा है, कोड उसको चैट बॉक्स में भेजो। हाँ ठीक है, चैट में भेज दो। फर्स्ट एक्सप्लेन करो क्या लिखा है, कैसे लिखा है? तो मैंने लिखा है लेट्स अज्यूम कि एक लिस्ट वन पहले से क्रिएटेड है जिसके एलिमेंट्स कॉपी करते हैं। यस। तो मैम हमने तीन स्ट्रक्चर पॉइंटर्स बनाए, चार बनाए, फर्स्ट टेम्प वन और नेक्स्ट। टेम्प वन वो पॉइंटर है जो लिस्ट वन के सारे एलिमेंट्स को पॉइंट करेगा। हाँ। तो मैम टेम्प वन को हमने लिस्ट वन के फर्स्ट एलिमेंट से नल तक चलाया, और अगर लिस्ट खाली है यानी कि टेम्प के अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल वाला टेम्प के अंदर कुछ नहीं है, तो हम एक नोड क्रिएट करेंगे फर्स्ट, उसके अंदर टेम्प वन का डेटा डालेंगे और फर्स्ट को और टेम्प जो है उसे फर्स्ट बना लेंगे। देन इन द नेक्स्ट केस व्हेन टेम्प इज नॉट नल, सो हम एक नेक्स्ट फिर उसके बाद हम नेक्स्ट नोड बनाते चले जाएंगे और डेटा कॉपी करते चले जाएंगे while copying the address of next temp का next में next आता है, उसके next का address। ओके, एनीवन एल्स? और भी किसने लिखा है? मैम सेम ही है, बस मैंने while लूप से कर दिया है। ओके, so concept I hope it's clear to everyone. यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को भी क्लियर है कैसे कॉपी करेंगे एक लिंक लिस्ट को दूसरे लिंक लिस्ट में?
बताइए बेटा, किसी को नहीं समझ में आया तो वी कैन डिस्कस, अदरवाइज विल गो टू द नेक्स्ट एल्गो. हाँ जी, सबको समझ में आ गई एल्गो कैसे लिखेंगे कॉपी करने के लिए एलिमेंट्स फ्रॉम वन लिंक टू अनदर. Yes, ma'am. ओके मैम. Okay, so these are very simple algorithms for the insertion. So this is how the copy algorithm of linked list will work. जब भी आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक काइंड ऑफ इंसर्शन या कॉपी कर रहे हैं, तो इन दैट फर्स्ट यू नीड टू चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी और नॉट. तो उसके लिए क्या होता है हमारी कंडीशन, if first is equals to null, it means there is no element in the linked list. Here the first is similar to the start that we already discussed in the class. हम उसमें start pointer लेते थे, in this we are having the first pointer. नेक्स्ट क्या है, कॉपी फर्स्ट नोड. तो फर्स्ट नोड के लिए बिकॉज हम नोड का एड्रेस किसमें न्यू में कॉपी कर रहे हैं, और नया जो नोड हमने कहाँ से लिया है, अवेल से लिया है. सो we'll repeat the process until we reach to the null. मैम एग्जाम में ऐसा तो नहीं है ना कि एल्गो जो है वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए. क्या बोल रहे हो बेटा, दोबारा पूछो. मैम एग्जाम में ऐसा तो नहीं है ना कि एल्गो वर्ड टू वर्ड होनी चाहिए. 1 to 1 मीन्स वर्ड टू वर्ड. वर्ड टू वर्ड नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बस द कंसेप्ट शुड बी राइट. बट ये है कि आप चलो अभी तो लिख दोगे, बट आई डोंट नो फ्रॉम योर फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसमें यदि आप जितना बुक के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करोगे तो दैट विल बी बेटर, बिकॉज एग्जामिनर फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जज करते हैं. अदरवाइज आप केवल आप एल्गो आपका कोई भी लिख सकते हैं, सिंटेक्स आप उसमें कोई यूज कर सकते हैं, जस्ट द कंसेप्ट शुड बी राइट. अब आपने स्टार्ट को फर्स्ट लिया है, पीटीआर को कुछ और नाम दिया है, दैट नॉट गोइंग टू चेंज द कंसेप्ट. ओके, नाउ यू टेल मी कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जो एल्गो लिखे हैं उसमें और सर्कुलर में क्या डिफरेंस आएगा. जो हमने सिंगल इंक्लिस्ट लिखी है उसमें हमने लास्ट एलिमेंट के अंदर नल पॉइंटर ऐड करवाया है, जबकि लेकिन अगर हम सर्कुलर लिंक लिस्ट करेंगे तो हम उसको लास्ट वाला जो हमारा पॉइंटर होगा, वेरिएबल होगा, उसके एड्रेस पार्ट के अंदर हम फर्स्ट वाले को लिंक कराएंगे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा. ओके, अब हमने किसी भी ऑपरेशन के लिए जब ट्रैवर्सिंग करेंगे तो उसमें क्या कंडीशन में चेंज आएगा. मतलब लाइक हमने सिंगल लिंक लिस्ट मैम में while temp next not equal to first.
आई एम आस्किंग यू कि जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर जब ट्रेवर्सिंग किया या सर्चिंग किया तो उसमें हम लोग लास्ट पॉइंट की वैल्यू क्या देते थे? डू दिस स्टेप या रिपीट दिस स्टेप व्हाइल ptr is not equals to null. जब तक वो नल नहीं हो जाता तो what condition will give in the case of circular linked list, because circular linked list में तो null होगा ही नहीं. So how the condition of the loop will be terminated in case of circular linked list? Yes, tell me. temp not is equals to null. Oh, temp not is equals to first shell. Anyone else other than Spursh who wants to reply? मैम एक बार रिपीट करना क्वेश्चन. Okay. हम लोगों ने अभी तक जो सिंगल लिंक लिस्ट किया था उसमें हम हर एक के अंदर हमारे लूप का टर्मिनेशन कब देते थे? जब हम बोलते थे कि ptr is not equals to null. ptr not equals to null होता था एट द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट, यानी कि क्योंकि लास्ट नोड में हम नल स्टोर करवाते हैं तो हमें यदि ट्रेवर्सिंग करनी है या कोई एलिमेंट सर्च करना है, इन दैट केस आपको हमेशा क्या करना पड़ता था? उस एल्गो नहीं सॉरी लिंक लिस्ट के एंड तक जाना होता था. और एंड का कैसे पता लगता है? फ्रॉम द नल पॉइंटर. अब बिकॉज इन द केस ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट वी आर नॉट हैविंग एनी नल पॉइंटर, सो हाउ द कंडीशन विल बी टर्मिनेटेड? लूप कैसे टर्मिनेट होगा कि हमें कहाँ स्टॉप करना है? मैम इसके अंदर हम दो कंडीशंस कर सकते हैं कि हाँ जी, एक तो हम बताइए. यूजर से इनपुट ले कि जब यूजर हमारे एलिमेंट्स इनपुट कर रहा है सारे तो हम यूजर से इन्फॉर्मेशन ले कि उसको आगे नेक्स्ट एलिमेंट इनपुट कराने की नहीं. अगर उसमें नो लिख दिया तो हमारा एग्जिट कर दिया एग्जिट यूजर से. और मैम लेकिन इसमें तो कभी कभी दिक्कत आएगी कि हम सेकेंड ये रखेंगे जो हमारा लिंक लिस्ट में फ्रंट और रियर पॉइंट होगा जब रियर के एड्रेस में हमारा फ्रंट वाला पार्ट आ जाए, क्योंकि हम सर्कुलर लिस्ट ऐसी होगी कि जो सर्कुलर लिस्ट का हमारा एक लिंक लिस्ट का लास्ट एलिमेंट होगा उसको हमने दोबारा ऐड करा था, वो लास्ट वाला जो लास्ट रियर होगा वो हमारा फ्रंट की जगह पे आ जाएगा, फ्रंट अपने पॉइंट से एक आगे हो जाएगा. तो मैम जब हाँ जी मैम. हाँ बोलो, कंटिन्यू करो. तो मैम जब रियर जो है वो फ्रंट को लिंक करेगा, नहीं दोनों आगे पीछे हो जाएंगे तब हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए. बेटा पहली बात तो ये कि आप जो रियर और फ्रंट ये टर्म्स यूज कर रहे हो ना, ये हम लिंक उसमें करेंगे क्यू में. हम अभी लिंक लिस्ट में ये रियर और फ्रंट टर्म्स यूज नहीं कर सकते. सेकेंड थिंग, ये तो हमने वर्बली बोल दिया कि हमें पता है कि वो घूम के वापस फर्स्ट पे आ जाएगा, तो जब हमारा, बट इस कंडीशन को हम उसमें एल्गो में कैसे स्पेसिफाई करेंगे? उसके लिए हमें जो हमारा उस केस के अंदर हम जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा हम उसको किसी टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे, और जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट टेम्परेरी वेरिएबल के इक्वल नहीं रहेगा तब हमारा पता चल जाएगा कि फर्स्ट वेरिएबल की जगह पे दूसरा वेरिएबल एंटर हो चुका है. ओके. तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप डायरेक्टली स्टार्ट को यूज ना करो, उसको एक कहीं पे सेव करके रख दो, और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हम, बिकॉज हमने सेव यूज किया था पहले, ये ptr यूज किया था, तो उसके बाद इनिशियली वंस यू मूव फॉरवर्ड इन दैट केस, यदि आपका ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर ट्रेवर्सिंग यदि आपका फिर से एनकाउंटर होता है कि एड्रेस इज इक्वल्स टू स्टार्ट हो रहा है, देन वी कैन स्टॉप एंड वी कैन सी कि हम घूम के वापस से लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड पे आ गए. बात पूछनी थी हाँ जी. मैम, सर्कुलर लिंक लिस्ट तो हमारा तब पॉसिबल होगा ना अगर हमें लिंक लिस्ट का साइज पता है. क्यों? तो मैम क्योंकि सर्कुलर लिंक लिस्ट तो अगर हम सर्कुलर क्यू देखते हैं एक तरीके से, तो सर्कुलर क्यू के अंदर हमारा क्यू का हमें साइज पता होता है, तो इसलिए हमारा लास्ट वाला जो फिल हो जाता है तो लास्ट वाला अपने फर्स्ट पे आ जाता है. बेटा क्यू को तो इम्प्लीमेंट करने का कंसेप्ट अलग होता है. क्यू इज काइंड ऑफ लाइक एरे टाइप से होती है, बट लिंक लिस्ट में हमारा अलग कंसेप्ट होता है.
अब आपको क्यों चाहिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स, ये पहले से पता हो तभी आप सर्कुलर क्यों बना सकती हो? कहाँ आ रही है लिमिटेशन ऐसी? मैं पूछ रहा हूँ मैम कि ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि नहीं मैम बेटा अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम्म, नहीं पता तो फिर हमें तो जितने एलिमेंट्स चाहिए हम उसको कंटिन्यूस एक ऑर्डर के अंदर एंटर कराते रहें, हमें हाँ लास्ट जी, एलिमेंट से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो हम सर्कुलर क्यों करते हैं कि हमारा एलिमेंट दोबारा फर्स्ट वाले पे आए और फिर उसकी प्लेसेस लेना स्टार्ट कर दे दोबारा से। ओके, सर्कुलर क्यों करते हैं? अभी आपने एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का एप्लीकेशन पढ़ी थी जो मैंने पॉइंट्स दिखाए थे उनमें? पढ़ा तो था। चलो मैं बताती हूँ आपको, एक मिनट जस्ट वेट। ओके, हमने सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाई। ओके, अब जब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो ऐसी हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता हो। क्यों चाहिए हमें पता करने? हम सिंपली जिस भी एलिमेंट के अंदर आपका स्टार्ट को पॉइंट करवा देंगे तो वो आपका लास्ट एलिमेंट बन जाएगा। अब बीच में आपके इसके 10 एलिमेंट हो, 15 हो, 5 हो, डजंट गोइंग टू इफेक्ट इन एनी वे। तो सिंपल जैसे लिंक लिस्ट में हमें ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता। इनफैक्ट लिंक लिस्ट को हम यूज ही तभी करते हैं जब हमें ये नहीं पता होता कि हम कितने उसमें एलिमेंट्स एंटर करवाने वाले हों। अदरवाइज यदि हमें पहले से फिक्स ही पता हो तो हम एरे यूज कर लेते हैं, हमारे पास फिक्स साइज मेमोरी एलोकेशन होता। बट हम ये वाला कंसेप्ट इसीलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें इसमें इंसर्शन डिलीशन इजी रहता है। मेमोरी थोड़ा ज्यादा ऑक्यूपाई करता है बिकॉज वी आर मेकिंग यूज ऑफ पॉइंटर्स। अब ये वाली ऐसी जो लिंक लिस्ट या सर्कुलर क्यू कह लो या लिंक लिस्ट कह लो, ये सब यूज कहाँ होते हैं? लाइक जैसे हमने बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टाइम शेयरिंग एप्लीकेशंस होती हैं। ओएस क्या होता है सबको पता है? क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? वो होता है जो सारे हमारे एप्लीकेशन जितना भी टाइम कंज्यूम हो वो सब कुछ कंट्रोल करता Anyone else want to give some different definition? है। हम सिस्टम से जैसे रिक्वायरमेंट होती है इंटरप्ट लेके उस हिसाब से डेटा फ्लो करवाते हैं। और कोई definition? Yes, anyone else want to give the definition of OS? Okay, fine. So OS is basically an interface between the hardware and the user because कोई भी user directly cannot work with the hardware. तो उसे कोई ना कोई ऐसा मीडियम या इंटरफेस चाहिए जिसके थ्रू वो अपने इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को बता सके, और instruction can do work according to that hardware instructions and can produce the results. So it's a kind of interface between the user and the hardware. अब इसके अंदर बहुत सारे टास्क होते हैं, लाइक हमारा फाइल मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट होता है। इट इज मैनेजिंग ईच एंड एवरी एप्लीकेशन एंड प्रोसेस बिकॉज
जैसे ही हमारा जो हम सिस्टम ऑन करते हैं तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम जो कि बेसिकली बूटस्ट्रैप लोडर होता है. So that is the first program, and first it loads the OS into the memory. So without OS, our system is not able to work, right? अब like OS का एक task होता है resource management. Do you have any idea resources क्या होते हैं? Okay, resources होते हैं like we are talking about the computer memory, then आपका हो गया CPU time या फिर clock cycles, all these are the resources. So because in any system we have the limited number of resources and we have number of tasks to do. Number of tasks यानी कि हम जैसे जो भी application start कर रहे हैं like वो हमारा you want to type something on the MS, in background you are playing music and multiple tasks you are doing. Even जो आपको दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको टास्क या प्रोसेस बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं. जो आपने टास्क मैनेजर ऑन करके कभी देखना कितने सारे प्रोसेस आर रनिंग इन ऑर्डर टू सपोर्ट योर वन एप्लीकेशन. तो बिकॉज वी हैव द लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज तो ऐसा है नहीं कि एक साथ सबको रिसोर्सेज मिल जाएंगे. तो द मेन टास्क ऑफ OS इज रिसोर्स मैनेजमेंट ऑल्सो. तो रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए हमारा अलग अलग शेड्यूलिंग क्राइटेरियाज होते हैं कि लाइक किस जॉब को कितनी देर के लिए कौन सा रिसोर्स देना है. तो उसी तरह उसमें एक ना टाइम शेयरिंग एप्लीकेशंस होती हैं. टाइम शेयरिंग एप्लीकेशंस में क्या होता है लाइक एक इस टाइप का क्यू है. उसमें आपका प्रोसेस P1 आया है, फिर P2 है, then P3, then P4 and P5. Let's say we are having 5 process in our system. Here we are having the CPU. अब CPU टाइम यूज करना है या मेमोरी यूज करना है, कोई भी रिसोर्स चाहिए P1 को फॉर द एग्जीक्यूशन. तो अब CPU को सबको अलोकेट करना इज काइंड ऑफ CPU शेड्यूलिंग. तो CPU शेड्यूलिंग भी एक टास्क होता है जिसको कि हम टाइम रियल टाइम उसमें एप्लीकेशंस में मैनेज कर सकते हैं. रियल टाइम नहीं, बेसिकली टाइम शेयरिंग एप्लीकेशन होती है. टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि टोटल लेट्स से CPU के पास 10 मिनट्स हैं और एट दिस मोमेंट अभी हमारे पास 5 टास्क हैं या 5 प्रोसेस हैं. तो हम क्या करेंगे इक्वली सबको टाइम शेयर में डिवाइड कर देंगे. तो हमने बोला कि टोटल 10 मिनट्स हैं तो सबको 2 मिनट्स हम इक्वली दे सकते हैं. तो 2 इसको दिया, 2 इसको, 2 एंड 2, राइट. अब आपका हर प्रोसेस टाइम शेयरिंग में क्या होता है उसको एक इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर मिलता है कि वो केवल 2 मिनट के लिए ही एग्जीक्यूट हो सकता है. अब सपोज इस टास्क को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 मिनट लगते हैं, इसको 10 लगते हैं, इसको 15, इसको 6 और इसको 2. इट मीन्स एक बार प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हुआ 2 मिनट के लिए, ओके. देन प्रोसेस P2 आएगा 2, देन P3, देन P4 एंड देन P5. Every process got the CPU for 2 minute time exact time slot. अब P5 के बाद फिर से सेम रिपीटेशन होगा. P5 के बाद यहाँ से P1 से P5 तक चले. अब P5 के बाद फिर से P1 का टर्न आएगा. P1 4 में से 2 एग्जीक्यूट हो गया था, 2 और बचा था, अब इसका फिर 2 चलेगा. देन 10 में से इसका 2 हो गया था, 8 और बचा था, उसमें से 2 चलेगा एंड सो ऑन. ये P5 वाला इसका 2 था तो ये ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, सो इट विल गो आउट ऑफ द क्यू. तो इस काइंड ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम क्या करना है बेसिकली जब हमारे प्रोसेस सारे 1 2 3 4 कंप्लीट हो गए तो अगेन देयर विल बी द चांस ऑफ प्रोसेस P1 in time sharing application. So this is one kind of application of this kind of circular linked list या circular queue आप कुछ भी कह लीजिए जिसमें कि last one is pointing back to the first one. Is it clear? यस मैम. तो इसमें तो यही हो गया ना कि मतलब हमारे OS को पता था कि हमारे इतने टास्क हैं, इतने नंबर ऑफ टास्क, तो मेरे को इतने की लिंक लिस्ट चाहिए सर्कुलर में. हाँ जी बेटा. तो मैं भी तो वही कह रहा था कि हमें पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हमें चाहिए, कि यानी इतने एलिमेंट्स के बीच में हमें बार बार सर्कुलर करना है कि हमारी लिंक लिस्ट को, तो हम उसी के बीच में करेंगे.
वो हम इन कंटेक्स्ट टू अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे अभी हमने बोला कि हमें 5 टास्क हैं तो 5 में इक्वल अमाउंट ऑफ डिवाइड करना है। अब सपोज हम इस एप्लीकेशन के लिए इसको यूज नहीं कर रहे हैं, सिंपल आप एक लिंक लिस्ट देखो, फॉरगेट अबाउट द ओएस, फॉरगेट अबाउट द टाइम शेयरिंग, तो उस केस में तो यू कैन हैव एनी नंबर ऑफ नोड्स, और सिंपली हम इसमें लास्ट को फर्स्ट को पॉइंट क्यों करवा रहे हैं, बिकॉज इट विल टेक लेस टाइम इन ऑर्डर टू रीच बैक टू द फर्स्ट वन। आपने एक इसको प्रोसेस किया है और प्रोसेस में यदि कुछ एप्लीकेशन ऐसी है या फिर कुछ ऐसा हमें रिक्वायर्ड है कि हम लास्ट से फिर से फर्स्ट पे पहुंच जाएं, तो फर्स्ट पे पहुंचने के और भी तरीके हैं कि आप वापस से स्टार्ट फाइंड आउट करो और स्टार्ट से आप यू विल गेट द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, but instead of having that process, it's always faster to reach back to the first node by using this circular list. That's the only thing. Doesn't matter उसमें आपके number of elements कितने हैं, nodes कितने हैं। हाँ जी बेटा, आया समझ में? उधर वो जाऊंगा जो जो सिंपल करे खड़े हो जाए खड़े बेटा आप लोगों के यही काम रहता है क्या इसमें मीटिंग में कि आप प्रेजेंटर बनते रहो, टीचर्स को म्यूट कर दो? मैंने स्टार्टिंग में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था सबको अटेंडी बनाया था, and a single student made you all again presenters. Yes, Puru, आपने मीटिंग लेट ज्वाइन की थी and you was a presenter and you make rest of the student also presenter, isn't it? मैम Yes. आप सेटिंग्स में जाकर ऊपर से वहाँ पे कर दो ना कि जो भी ज्वाइन करेगा वो अटेंड ही हो जाएगा अपने आप ही। Yes, next time I'll do that only. यस मैम। But this is not the way. If you don't want to study, you can leave the class. Okay, fine. So is that clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Okay, so what next? If you have any doubt in any topic, you can ask. एक आप लोग उसका जरूर ध्यान रखिएगा कि लाइक आपको जब भी किसी okay, now you tell me one answer for this question that if you are searching an element into the linked list, अब वो आपकी लिंक लिस्ट सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड, हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट द सर्चिंग प्रोसेस? मैम अगर हमारी लिंक लिस्ट अनसॉर्टेड होगी तो हमें सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे। यस। और अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड होगी तो हमें एक उस लिंक लिस्ट का एक मिड वाला
नंबर ले लेंगे, जैसे अगर किस भी ऑर्डर में उसका हम उस नंबर को चेक करेंगे कि उससे ग्रेटर देन है और लेस देन है, फिर उस हिसाब से हम कंडीशन लगा सकते हैं। तुम्हारी लिंक लिस्ट जो इसका साइज ज़्यादा था वो उसका हाफ हो जाएगा, फिर दोबारा हम उसका मिड निकाल के उसका दोबारा हाफ हो जाएगा और हमें इजीली हमारा नंबर पता चल जाएगा। Who is giving this answer? यस। यश, ओके। यश, अभी मैंने आपको जो लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेज थे उसमें आपने एक पॉइंट हम नहीं पढ़ा शायद। लिंक लिस्ट में बाइनरी सर्च रख सकते हैं। यस, हम उसको मिड हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये आपने क्लास अटेंड नहीं की थी, अदरवाइज हमने ये क्लास में भी डिस्कस किया था। बिकॉज हम एक लिंक लिस्ट को कभी भी टू हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट नो द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिस्ट, सो वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स मिडल, राइट? तो आपकी लिस्ट सॉर्टेड है या अनसॉर्टेड, उसमें डिफरेंस केवल यही आता है कि लाइक अनसॉर्टेड में तो आपको यू हैव टू सर्च ईच एंड एवरी एलिमेंट टिल द लास्ट। बट यदि हमारी सॉर्टेड लिस्ट है, इन दैट केस यदि आपको बीच में किसी एलिमेंट से आप कंपेयर कर रहे हो, लाइक इफ यू आर कंपेयरिंग 15 आपको सर्च करना है एंड योर सम एलिमेंट यू आर कंपेयरिंग विद 20 आ गया है एंड यू आर लुकिंग फॉर द 15, so for after 20 you will not going to search the 15 because list is already sorted, so definitely after 20 there cannot be 15, so you will stop your search at that particular point only, so it will just reduce the searching time. Got it? यस मैम। अब जो आपको एल्गो में इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है वो ये कि यदि आपका एलिमेंट गिवन है और उसको आपको क्या करना है, डेटा की वैल्यू गिवन है और उसको सॉर्टेड लिस्ट में आपको इंसर्ट करना है, राइट? डेटा की वैल्यू गिवन है और सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करना है, तब आपको उसमें दो एल्गो लिखनी होंगी वहां पे। पहले आपको उस एलिमेंट जो आप इंसर्ट करना है उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी होगी, तो उस लोकेशन के लिए यू हैव द डिफरेंट एल्गो जो कि हम सर्चिंग एल्गो यूज करेंगे। Once you find out that location, after that you will write another algo to insert a new node at the given LOC, right? इसी तरह डिलीशन में भी आपको यदि हमने बोला कि इस एलिमेंट को डिलीट करना है, लाइक आपको नोड नंबर बताया तो नोड नंबर तो दैट इज योर लोकेशन कि आपका 5th नोड डिलीट करना है, 10th नोड डिलीट करना है। बट यदि आपका ऐसा आता है कि डिलीट द नोड विद डेटा 50, इन दैट केस आपको पहले उसको सर्च करना होगा कि वो कहाँ पे है, by applying the search algorithm, and from that search algorithm you will get the location, और location को use करके now then you will delete the element। तो जब आपको स्पेसिफिकली डेटा गिवन हो, चाहे इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, स्पेशली इन द केस ऑफ सॉर्टेड लिंक लिस्ट, उस केस में आपको दो एल्गोरिथम्स अप्लाई करनी होती है। पहला सर्चिंग अप्लाई करके उस नंबर की लोकेशन फाइंड आउट करो एंड देन लोकेशन एल्गो यूज करके उसको आप इंसर्ट या डिलीट करेंगे। Is it clear to everyone now? मैम हाँ जी बेटा बताइए। Yes, tell me.
51 050 अरे है Yes, am I audible?